Question number 5. This question is from kinematics of motion in a straight line. Kinematics of motion in a straight line. A particle moves in a straight line starting from a point O. Particle is moving from O. The velocity v meter per second of the particle t second after leaving O is given by. This is velocity time relation for time 0 to 4 second. Velocity time relation is given v is equal to t cube minus 9 over 2 t square plus 1 for t lies between 0 and 4. This is time limit 0 to 4 seconds. You may assume that the velocity of the particle is positive for t smaller than 1 over 2 seconds. Less than 1 over 2 सेकेंड के लिए velocity जो है this is positive. Velocity is 0 at t is equal to 1 over 2 and is negative for t greater than 1 over 2. This is the diagram. This is the way on which the particle moves. T1 over 2 is here. The direction of the movement is this for t is equal to for t positive. T less than 1 over 2 के लिए velocity positive, direction of the particle is this, and this direction shows that the direction of the particle is in opposite direction. Because velocity is negative means opposite direction में उसकी movement हो जाएगी. So this is for t is greater than 1 over 2. जब time 1 over 2 से greater होगा, तो t velocity is 0 at t is equal to 1 over 2. 1 over 2 second यहाँ पे है और velocity is 0. So this is a sketch. It will help us to solve the question. This is the velocity time relation. We have to find the distance traveled between t is equal to 0 to t is equal to 1 over 2. तो डिस्टेंस वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी गेट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस. तो सो वी इंटीग्रेट दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम and the limit is 0 to t is equal to 0 to 2 is equal to 1 over 2. Now we integrate this. Integration of t3 is t4 over 4 minus 9 over 2 t square. इसकी इंटीग्रेशन है t3 over 3. 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t वो t हो जाएगा. तो ये हमने इंटीग्रेट कर दिया. नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट 0 to 1 0 to 1 over 2. 0 is the lower limit, 1 over 2 is the upper limit. और सिंप्लीफाइंग फर्स्ट इसको ये कैंसिल आउट हो जाता है, 3 over 2 आ जाएगा. अब हम इन प्लेस ऑफ t फर्स्ट वी विल पुट 1 over 2. तो वहाँ 1 over 2 की पावर 4 over 4 माइनस 3 over 2 1 over 2 की पावर 3 प्लस 1 over 2 माइनस लोअर लिमिट है 0. तो यहाँ पे सारी जो टर्म्स है ये तीनों टर्म्स में t आता है, तो t इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा. लोअर लिमिट के लिए 0. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये 1 over 16 हो जाएगा. 1 over 16 डिवाइडेड बाय 4, तो वो 16 जो है 4 से मल्टीप्लाई करके 1 over 64 आ जाएगा. इनको मल्टीप्लाई करके 3 over 16 प्लस 1 over 2 एलसीएम इज 64. और इसको एलसीएम प्रोसेस से हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो s इज इक्वल 21 over 64. इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें तो डिस्टेंस जो है वो we get 0.328 meter. This is part A, and next part B is find the positive value of t. Now we have to find the value of t, positive value of t at which the acceleration is 0.
Hence find the total distance traveled between t is equal to 0 and this instant. वो instant कौन सा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू हम t की फाइंड करेंगे. First of all, we will put acceleration is 0. So this is a velocity time relation जो कि question में given है. वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा डी वी ओवर डी टी, दैट इज एक्सेलरेशन. टी थ्री की डिफरेंशिएशन थ्री टी स्केयर माइनस नाइन ओवर टू टी स्केयर की टू टी और वन क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसकी जीरो आ जाएगी डिफरेंशिएशन. तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट थ्री टी स्केयर माइनस नाइन टी. तो ये दिस इज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन को जीरो पुट करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे तो वी गेट थ्री टी कॉमन है दोनों टर्म्स में थ्री टी और टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ टी. थ्री टी इज इक्वल टू आइदर थ्री टी इज इक्वल टू जीरो और टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. वी गेट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू थ्री. But t is equal to 3, t is equal to 0 is not applicable because we have to find the positive value of t. So only we have value t is equal to 3. This is the value of t, positive value of t. Next we have to find the total distance traveled between t is equal to 0 and this instant. Instant कौन सा t is equal to 3. जीरो से टी टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू थ्री तक डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन हमने पहले ही फाइंड कर लिया हुआ है जीरो से वन ओवर टू तक डिस्टेंस हमने पहले फाइंड कर लिया है. इसके बाद हम वन ओवर टू से थ्री तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे. अगेन वी आर इंटीग्रेटिंग एंड टेकिंग द लिमिट वन ओवर टू टू थ्री. इंटीग्रेटेड अगेन वी गेट दिस t4 माइनस, ये हमने इसको पहले ही इंटीग्रेट किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में और इसको अब लिमिट अप्लाई करनी है. वन ओवर टू इज द लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज थ्री. तो अगेन वी आर अप्लाइंग अपर लिमिट देन लोअर लिमिट. तो फर्स्ट अपर लिमिट इज थ्री इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट थ्री. ये यहाँ पे थ्री पावर फोर ओवर फोर माइनस थ्री ओवर टू टी इज थ्री थ्री क्यूब प्लस थ्री टी इज इक्वल टू थ्री माइनस लोअर लिमिट इज वन ओवर टू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पहले ही हमारे पास 21/64 आ जाता है वन ओवर टू पुट करने से. ये फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, ये देखें वन ओवर टू पुट किया है तो हमारे पास ये आया. इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये 21/64 आ गया था. तो हमने ऐसा यहाँ पे 21/64 लिख दिया है. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस. सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 81 एलसीएम इज 4, 4 और 2 और 1 का एलसीएम इज 4. तो वी गेट दिस 81 माइनस 162 प्लस 12 ओवर 4 माइनस 21/64. सिंप्लीफाई वी गेट इस को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 17.25 माइनस ये 21/64 है दैट इज 0.328. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे वी गेट माइनस 17.578. तो ये डिस्टेंस जो है ये नेगेटिव नहीं होता तो वी विल टेक ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. तो सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है वन ओवर टू टाइम वन ओवर टू से लेके थ्री तक. But we have to find the distance from 0 to at this instant and at this instant t is equal to 3. तो 1 over 2 से 3 तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है ये 17.578 और दूसरा डिस्टेंस है 0 से 1 over 2, वो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था 0.328. तो दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड कर लेंगे. बट वी विल ignore this negative sign because this is distance or distance is positive. So 17.578 plus 0.328. Adding these we get 17.9 meters. That is the final answer correct to three significant figures.